Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbooks. I am your host, Aliza Naqvi, and today we have an exhilarating guest. She is an ACCA member, and she's currently working as a senior associate in assurance in PwC Pakistan. There is so much going on in her life, and we want to hear it straight from her. A huge welcome to Ms. Shiza. Hi Lisa. Thank you for the Hi. introduction. It's very generous and very nice. How are you doing, Shiza? I'm good, Alhamdulillah. How are you doing? Alhamdulillah, I'm good. It's been a great journey right now in PwC as well. So I am looking forward to your, conversating it with you. We are very much looking forward to everything that you have to share. But first up, I want to ask of a word that describes you currently in the moment, describes you in whole. I think I would say that I'm happy and very motivated for future opportunities right now. It's been, I think, more than 3.5 years in Ferguson right now. So I think a lot of opportunities are ahead of me. And right now I'm very happy. No overtime, nothing of that sort. So I'm in a good place right now. Mentally as well, physically as well. Yeah. I think we're gonna focus more on happy right now Yeah. because that is not so much of what we hear. Yeah, from exactly. people. In this profession, I think आपको ये सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलता कि Yeah. you are happy, like you are stressed every time, but this is not the case with me right now. It was back here, but not right now. Yeah. Okay, we're gonna start with your journey. Yep. ठीक है, आपने क्या क्या करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, कहाँ कहाँ गई, इनिशियल एजुकेशन, and then how you landed in Tabanis. I will. So I started my schooling with Habib Girls, and I think my college was with Habib Girls as well. So from the start, I was a commerce student. Science मुझसे हो ही नहीं पाई because as I told you, I was not a good student at the moment. So I did my schooling from Habib. It was in commerce. Then my inter as well from commerce. And inter में मेरे पास एक motivation ये थी कि I was in sports from my schooling era as well. Okay. So I played netball and throwball a lot, like for 8 years straight. So I was very much into that and not very much into studies at that point. But I think in inter I wanted to become the sports captain of my college. So uske liye you had to clear your prelims in one go, and you have to be the good student and in the good books of all the teachers. So I had to do it. So I pushed myself, I studied hard, I played sports, and I did everything that I could to just get into that list. And I did. And then there was voting and all of that, and I became the sports captain eventually. Okay. So then I think in my 12th class, it was like the best year of my life. I was the sports captain. I did good in my grades as well. I played a lot. We played national as well in Lahore for throw ball, and we won the Wow. first, yeah. And I was the captain of that team. Proud moment. Yeah, exactly. The proudest moment I think I have in my life right now. Then I think my family is from finance. My father is a banker. My brother also did a CFA. So I think the finance. The finance has it's in my genes that we do finance, and my other family members are in finance as well. So ultimately I had the options of doing maybe like the bachelor's or CA, CCA and stuff like that. But I always wanted to go abroad. Okay. I think because half of my family is in abroad, and I think with their lifestyle I've always been very influenced because of their lifestyle that I want to experience that as well. Yeah. So I'm like, CA, I cannot do it because it's more efficient for the people who want to live in Pakistan. Yeah. And ACCA at that time, it was very popular, and it was like, oh, the ticket to abroad. It's the Yeah. ticket to abroad. So I'm like, I decided, I think in 9th or 10th grade that I'll do ACCA from the start, Okay. because I was not a studious kid, and science was beyond me. I could not be a doctor, to be very honest. So I think my cousin was studying CA here. And I got to In know about Tabanis. Tabanis. Yeah, in Tabanis. So I got to know about Tabanis, and I think at my time there was only 2 or 3 institutes only that were they were giving tuitions for CA and ACCA. So he was studying here, I came here, and they did provide me a good deals. Like you take 5 papers and you will get to this amount. And I'm like, yeah, that's a good thing. Because we didn't know about teachers at that time, because initially you don't know anything. No advertising was there, nothing of that sort. So then I initially started my started my papers from here, and then one by one, and I still remember the unexpected moment was that I gave my first paper MA1, and I was like, पास होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता. अच्छा. And I scored 90%, the highest in my class. Wait, what? Yeah, and me being the dumbest student, I like, how? And I could not believe my eyes, because आपको उसी वक्त result मिल जाता है उसका. And I was shocked.
highest in my class. Maybe you're not dumb. I think, I mean, I didn't definitely want you're it. not. But you maybe self-doubt a little. Maybe I didn't want to study before. Maybe. The sports Yeah. had a good influence on me. Like you didn't want to believe you're good Yeah, at something exactly. else as well. But I studied really hard in my schooling era as well. But I didn't get any opportunity. I don't know why it was happening, why I was not getting the marks and the percentages that my brother and my cousins were getting. We were in joint family, so everyone was getting good percentages. I'm like, here, like, why is it happening with me only? And everyone lost hope in me. You have no idea. Everyone lost hope, and they were like, And yet here you are today. and they Wow. were like, if अगर इसका BCom भी हो जाते ना तो वो भी बड़ी बात है, like BCom भी. Oh my god. So I'm Wow. like, I was very demotivated and all sort of things. But sports was the only thing that kept me going, and I still miss it because after joining, I think Tabani's as well, you don't get much time because you have morning classes, you have evening classes. Then there was BCom. I did BCom with ACC as well. Acha, Yeah. So okay. because I had to get a bachelor's degree, so I did BCom as well. So I think I didn't get much time to, just go for my practices and all sort of things. And then I joined AFF. And after joining AFF, I think every other interest went because audits, you have stringent deadlines, you have to just report to partners and senior managers. And it was because of ACCA, I had to do 4 audits in a year. Usually people do 2, that is December and June. But because I didn't get leaves that much, because when CA were going on their leaves, I had to do the audits that were in March and September as well. So it was like 4, like out of the year, 4 year I'm doing audits, and it was so hectic that I didn't used to get leaves as such. And I was doing back to back audits, and the overtimes, 11 o'clock, 9 o'clock. No. And I think being a female in Pakistan, you can't do much about that because there's no security as such here. But still, when things are required, you have to stay back and you have to do it when you're leading, when you're doing everything. When you're team lead as well, especially, you have to do these things. But after, I think, when I got selected for the PwC Middle East secondment, that all changed. I think when you're working for an abroad client, it's not like that. They're not working late. And yeah, we still do a little bit of late sittings, but not that much. And after, like, from the past 1 year, I am doing clients with PwC Middle East, and it's been a great journey. The manager here, my senior manager here, even my senior manager there, they're all very great. They're all very supportive, and they're all ACCAs. So I think that's the point I get, that there's no discrimination as such in that part, and I get equal opportunities. If I am, I'm capable of doing that client, I'll get that client. There's no like, no, she's a female, or no, she's not CA, no, she doesn't have that skills. So I think that's been, I think, all And of I it. think that led you to be happy at this point. Because Exactly. you don't constantly have to prove it. Like, Yeah. I've Yeah, done exactly. my ACCA. I'm here. I know what I'm doing, No, I had to, explain myself a lot when I was in my initial years, that, I have the capabilities to do things. Yeah. Not because I'm a female, or not because I'm a CA, but I can do it. Even if as an ACC, I can do it. So I had to, push my senior manager that give me this client, I can do it. And after, I think, once they knew that no, she can do it, they started giving me good clients, like listed clients, and my like peers were like really like intrigued that ये तो लड़कों को मिलती है, इसमें तो late sittings होती हैं, ये इसको कैसे दे दी? Like it's sort of these things कि यार इसमें तो late sitting होती है, ये कैसे करेगी, या इतना मुश्किल client है, इसमें तो ये चीज़ें होती हैं. But I think all was written somewhere, and that all led to this secondment. Yeah, definitely. Because we were in good books of the managers, so they recommended us, and then we had interviews, and then eventually I passed, and then I got a client there as well. So right now I'm doing that only. Wonderful. I want to come back a little to your academic journey. And after that MA1 exam, after scoring 90%. Oh, my motivation was skyrocketed. Really? Exactly. I'm like, wow, I out-achieved myself here. Like, what did I do? And मैं तो इतना शौक थी, मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा शौक थे कि ये कैसे हो गया, ये तो मतलब हमने तो इससे कभी ऐसे वो ही नहीं किया था कि ये कर पाएगी. उसके बाद आई थिंक बैक टू बैक वी स्टार्टेड गिविंग पेपर्स, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा एक जो मैं देना चाहूँगी वो अपने टीचर्स के स्किल्स एंड उनकी मोटिवेशन की वजह से. आई थिंक वी बैक टू बैक गेव पेपर्स, एंड आई थिंक शुरू के पेपर्स तो चलो फिर भी ठीक है. जब व्हेन यू आर इन स्किल्स मॉड्यूल,
उसके अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ आपको ट्रिक्स चाहिए होती है पेपर करने की, आपको उस तरीके के एग्ज़ाम मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, आपको मॉक एग्ज़ाम्स चाहिए होते हैं। तबानी ने मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड की, क्योंकि वो ACCA से आई थिंक अफिलिएटेड है वो है, तो उनके पास मॉक एग्ज़ाम्स होते थे ACCA के, जो हम यहाँ पे बैठ के देते थे। तो और मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। आई थिंक मेरे टाइम पे सर हारिस हनीफ सर, हुसैन काजी सर, हमाद सरवर, उन्होंने इतना हमें सिखाया है इस ज़िंदगी के लिए। आई थिंक जो चाहिए होते हैं स्किल्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। बुकिश नॉलेज से हट के भी जो एक आई थिंक वो पर्सनल टच होता है ना आपको देने के लिए, वो उन टीचर्स ने हमें प्रोवाइड किया। एंड मैं आई थिंक मैं उनकी उससे हमेशा इन डेप्थ रहूँगी कि उन्होंने हमें वो चीज़ें पढ़ाई, वो चीज़ें सिखाई। वेदर बीट क्लासेज ऑन लाइक हमारी क्लासेस हुसैन गाजी की 9-9 10-10 बजे तक भी चलती थी, फिर भी मैं बीकॉम के पेपर्स देके आती थी एंड हुसैन गाजी की क्लास में बैठती थी, बिकॉज हमें वो चीज़ें चाहिए होती थी। मैं क्योंकि मैंने आपको बताया था आई एम नॉट अ स्टूडियस किड, तो मुझे एक टीचर की हमेशा ज़रूरत रहती थी। तो मैं अपनी क्लासेस एज सच मिस नहीं करती थी, क्लासेस भी मिस नहीं करती थी। जिस तरीके से वो बताते थे हम उसी तरीके से यूज्ड टू स्टडी पेपर पैटर्न उस तरीके से। एंड आई थिंक उनके पास इतना स्किल है कि उनको पेपर पैटर्न, उनको पेपर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, वो सब एक नॉलेज है। तो इसी वजह से द सोल रीज़न आई डिडंट गो टू any institute other than Tabani's was that I did all my ACCA exams from here, and मुझे इतना एक satisfaction थी यहाँ से कि यार मेरे तो पेपर निकल रहे हैं, मतलब the teachers are that good, और क्या चाहिए मुझे इधर। हमारे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, एंड मतलब इतना मोटिवेशन दोस्तों से, एंड इट वाज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। हाँ, स्टार्ट में हो सकता है कि राइवलरी हो, बट आई थिंक जब आपके पास कोई भी नहीं होता एंड वही कुछ लोग आपके सेक्शन के रह जाते हैं ना, तब आई थिंक उसके बाद एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है कि यार नहीं, मिल के पढ़ना है, पेपर देंगे तो साथ में देंगे, यही पेपर उठाएंगे, टीचर से पढ़ेंगे। फिर आप जब एक टीचर से पर्सनल टच लेते हो तो फिर आप उनके साथ मजाक मस्ती भी करते हो, तो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, हमने बहुत सारा घूमा भी है, हमने बहुत ज़्यादा हमारे टीचर्स के साथ मजाक मस्ती भी की है, हमने पढ़ा भी बहुत है, रात रात में भी पढ़ा है। माई रूटीन वॉज दैट कि मैं पूरी पूरी रात पढ़ती थी एंड दिन सोती थी, बिकॉज मुझे दिन में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। रात में जो मुझे सुकून से पढ़ने को मिलता था, लाइक देयर वाज नो डिस्टर्बेंस एट होम एज वेल, सो आई यूज्ड टू स्टडी द होल नाइट, देन आई यूज्ड टू स्लीप एंड देन आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड इन द इवनिंग एंड देन स्टार्ट स्टडिंग अगेन। तो स्लीपलेस नाइट भी बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ACCA की जर्नी बहुत आसान थी, स्किल मॉड्यूल से लेके प्रोफेशनल मॉड्यूल तक इट वाज वेरी हार्ड, अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, आपको अपनी प्लान्स छोड़ने पड़ते हैं, यू हैव टू लाइक आप किसी को टाइम नहीं दे सकते, इवन आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम नहीं दे सकते। बट आई थिंक उस जर्नी, जो वो जर्नी ख़त्म होती है ना, तब आपको जो उसका फ्रूट मिलता है वो फिर दैट्स मच मोर मच लाइक बहुत अच्छा होता है वो फ्रूट उस जर्नी का फिर। So I think, yeah. तो इस पूरी जर्नी में यू हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स अप टिल नाउ, कोई सेटबैक हुआ आपकी जर्नी में? ऑफ कोर्स सेटबैक इस तरीके से होता था कि कभी कभार मतलब पेपर्स काफ़ी मुश्किल भी होते थे ACCA के, जैसे आप हर चीज़ में स्किलफुल नहीं रह सकते, कभी आप रिपोर्टिंग में अच्छे हो तो कभी आप किसी चीज़ में अच्छे हो। पर आई थिंक कुछ ऐसे पेपर्स भी थे जहाँ पे मेरी कोई एज सच एक्सपर्टीज नहीं थी, तो उसके अंदर मुझे और बीइंग अ टर्म, मतलब मुझे अपनी उसमें ऐसे लगता था कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो मैं पॉडकास्ट के बाद ना आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि यू आर नॉट डम। बट आई थिंक एक सेटबैक उस टाइम से रहता ही है, क्योंकि मुझे हर पेपर में फिर यही लगता था कि यार ये पास होगा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अलग पेपर आते थे, कभी रिपोर्टिंग चल रहा है तो कभी टेक्स्ट चल रहा है तो कभी ये कभी वो, तो एक स्ट्रीम नहीं चल रहा है इसके अंदर। देयर आर डिफरेंट पेपर, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, डिफरेंट पेपर पैटर्न ऑल टुगेदर गोइंग ऑन, एंड बस आप वो क्लासेस ले रहे हो एंड आपको पता है कि यार पेपर देना है, और उसके बाद रिजल्ट की टेंशन। तो रिजल्ट में हम जाग रहे पूरी पूरी रात यू नो पास होगा नहीं होगा, पास होगा नहीं होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एक भी ऐसा पेपर नहीं आया जिसमें मेरा पेपर रुका, एंड सारे पेपर्स वन गो में मेरे क्लियर हो गए थे फिर। हाँ, और वो भी काफ़ी जल्दी, लाइक 3 साल से भी अंदर के अंदर, जस्ट बिकॉज आई थिंक तबानी के ट्रैक के ऊपर उन्होंने इस तरीके से सेट किया था हमारा पूरा कोर्स के ना हमारा कभी टाइम वेस्ट हुआ, हम पेपर्स दे पाए सही सही टाइम के ऊपर, हम पेपर्स चूज़ कर पाए सही टाइम के ऊपर, एंड उससे हमारे सारे पेपर्स आई थिंक हम सबके क्लियर हुए थे माशाल्लाह से। ओके, तो तबानीज़ के साथ साथ लाइक उनकी तो स्ट्रैटेजीज थी, बट व्हाट वर योर ओन स्ट्रैटेजीज दैट यू वुड अप्लाई टू एग्जाम? मेरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से रहती थी कि जब मैंने अपने कुछ इनिशियल पेपर पास किए ना, तो मुझे समझ आ गया था कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पता था कि मुझसे डिस्टर्बेंस में नहीं पढ़ा जाएगा, मैं अपने टाइम टेबल्स बहुत बनाया करती थी, मुझे लिखना का बहुत वो है, तो मैं अपने टाइम टेबल्स बनाती रहती थी, उसमें
डेट्स लिखती थी, कभी वो डेट्स नहीं हो पाए उनको चेंज करती रहती थी कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, इस दिन तो कंप्लीट करना है। एंड पूरा वो होता था कि 1 महीने में ऐसा कोर्स ख़त्म करेंगे तो किड्स करेंगे साथ में। एंड मैं कभी शाय नहीं करती थी सवाल करने से, मतलब मुझे ये होता था कि लोग क्या ही समझेंगे, इसको नहीं आता ना, बी इट कि उसको नहीं आता तो नहीं आता तभी तो सीखना एग्जैक्टली है ना। तो मैं कभी कभार अगर मैं शाय भी करती थी तो मैं अपने दोस्तों से पूछ लेती थी, लेकिन अगर डम से डम सवाल भी ना मैं अपने टीचर से कर लेती थी कि यार ये जवाब तो दे ही देंगे। कभी अकेले में कर लेती थी, कभी क्लास के सामने भी कर लेती थी। और हम लोग ऐसे होते थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सारे ऐसे स्टूडेंट बन गए थे जो पीछे नहीं बैठते, बैक बेंचर्स जो होते हैं वो क्लास में खाने वाले और क्लास में तब जगह वो वाले हो गए थे हम लोग। तो टीचर्स को पता था कि यार इनको जो भी होगा ना ये पूछ लेंगे। तो मैं शाय अवे नहीं करती थी, चाहे मुझे अपने फैमिली से पूछना है कि यार इसमें क्या होगा, मेरे भाई से पूछना है या मेरे अब्बू से किसी चीज़ के हवाले से पूछना है, क्योंकि वो सब फाइनेंस बैकग्राउंड के थे, कभी दोस्तों से पूछना है। तो आई बिलीव कि आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए कुछ भी पूछने से। अगर आप जितने भी डम क्यों ना लग रहे हो ना, यू जस्ट आस्क, आपको उस चीज़ का सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, यू आर बेटर ऑफ विद दैट रादर देन कि आप उसको रोक के रखो एंड वही चीज़ आपको आपके पेपर में फिर डिस्टर्ब ना करे। तो एक ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं सब पूछ लेती थी, और मुझे जो मटेरियल मिलता था ना पढ़ने के लिए, चाहे वो इंटरनेट से क्वेश्चंस क्यों ना हो, चाहे वो तबानीस के मॉक क्यों ना हो, मैं सब देती थी। ACCS के मॉक, तबानीस के मॉक के प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है विच कैन मेक यू परफेक्ट इन एनीथिंग। आप जितना भी क्यों ना पढ़ लो, इफ़ यू डोंट डू योर प्रैक्टिस इन ACCA यू वोंट गेट रिजल्ट्स इन योर एग्जाम्स। तो प्रैक्टिस मेड मी अ गुड लाइक अ परफेक्ट पर्सन के, मतलब हाँ मुझे ये चीज़ आती है करने के लिए, मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं उसी मोटिवेशन से आई थिंक एक एग्जाम में बैठती थी कि मुझे सब आता है, मुझे 100% पेपर करना है, फिर रिजल्ट की टेंशन नहीं है, एटलीस्ट 100% कर लिया तो 50 में तो मैं पास हो ही जाऊँगी। और मैं ये भी करती थी कि मैं अपना एग्जाम रिजल्ट कैलकुलेट करके आती थी बाहर कि मतलब इतना तो मैंने ठीक किया ही है, मतलब हर सवाल में से मैंने इतना तो ठीक किया ही है, पास तो मैं मतलब हो ही जाऊँगी। तो इस तरीके की भी स्ट्रैटेजी रहती थी। बट आई थिंक हर इंसान को अपनी स्ट्रैटेजी खुद से पता चली जाती है। जब वो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करता है ना, आई थिंक स्किल मॉड्यूल तक आके उसको एक अंदाज़ा हो ही जाता है कि उसको क्या सूट कर रहा है, किन तरीके के उसको उसका टाइम टेबल किस तरीके से सूट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी स्टूडियस ना, उनको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आई बिलीव मैं ऐसे लोगों को एडवोकेट करती हूँ जो इतने स्टूडियस नहीं थे और जिनको मेहनत करनी पड़ती है, जिनको पूरी पूरी रात लगानी पड़ती है पढ़ने के लिए, तो ऐसे भी होते हैं। तो हमें से उस चीज़ को फोकस नहीं करना चाहिए कि यार ACCA बहुत आसान है या इस तरीके से करके, या वो बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत पहले से अच्छे, जिनको इतना नहीं अपना वो लगाना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट हम जैसे भी हैं जो इतनी मेहनत करके क्योंकि मुझे था कि अब तो अचीव करना ही है। MA1 के बाद माई गोल वॉज स्ट्रेट कि मुझे बाहर जाना है, एंड द सोल थिंग दैट वॉज हेल्पिंग मी वॉज ACCA कि मुझे ये करना ही है, मुझे अपने आप को भी प्राउड करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करना है। एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस आई एम लाइक वेरी इंडेप्टेड टू अल्लाह मियां दैट इट ऑल वेंट गुड। मतलब एक पाथ में चलता गया एंड मैंने क्लियर कर दिया। लास्ट पेपर में भी आई रिमेंबर इट वाज अ फनी मोमेंट। आई रिमेंबर कि मैंने अपने पेरेंट्स को उठाया बिकॉज पेपर का रिजल्ट 4 बजे आता है, 4:30 बजे रात के। तो हर 3 महीने की तरह मैंने उनको उठाया कि मेरा पेपर क्लियर हो गया, एंड वाज मेरा लास्ट पेपर। एंड उनका रिएक्शन इट वाज द सेम। उनको लगा कि हाँ वो जो हर 3 महीने की तरह हमें उठा के बताती है, उन्होंने दे कांग्रेचुलेट मी दे स्लेप्ट अगेन। मैं इसी से क्वालिफाई हुई हूँ, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मतलब वो ऐसा रिएक्शन था कि मुझे हंसी आ गई, मैं रूम से बाहर निकली, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता मैं अब कुछ भी नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट डे उनको उठे तो आइडिया हुआ कि हो भाई पूरा AC से क्वालिफाई हो गया। तो आई थिंक वो एक बहुत फनी मोमेंट है, मुझे अब तक याद है। मैं अपने पेरेंट्स को अब तक बोलती हूँ कि आप लोगों ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। इससे ज़्यादा आई थिंक मेरे CA वाले जो क्वालिफाई होते हैं उनको इतनी उससे ज़्यादा हाइप मिलता है कि वो CA क्वालिफाई हो गया। नॉर्मल टाइम पे रिजल्ट आता है ना, अब 4 बजे उठा के हम क्या बोले। एग्जैक्टली, वो सब सो रहे गहरी नींद के अंदर। लाइक वो एक मुझे मोमेंट है, तो मुझे अभी भी आ जाएगा। मैं अभी भी अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आपने कोई रिएक्शन, इससे ज़्यादा तो आपने भाई के क्वालिफिकेशन पे दिया था मेरे से ज़्यादा। बट नहीं, जब नेक्स्ट डे वो उसमें आए तब दे आर लाइक नो इट्स अ बिग थिंग, और AC से क्वालिफाई करना तो इट डेफिनेटली इज अ बिग थिंग। अच्छा, इस क्वालिफिकेशन के बाद यू स्टेप्ड इनटू फर्म। यप। What challenges are generally attached to getting into a firm, and what are the challenges that you faced?
आई थिंक जनरली जो चैलेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि इंडक्शंस बहुत कम होती है ACCAs की यूजुअली, बिकॉज CA समर इंडक्शंस कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ आई कैप बहुत ज़्यादा हमारे पास CA की इंडक्शंस हो रही होती है। तो ACCAs की खुलती भी थी तो अश्योरेंस में नहीं खुलती थी, कोई और डिपार्टमेंट में खुलती थी, बट मी बिंग ACC मुझे जाना ऑडिट के अंदर था, मुझे एक्सटर्नल ऑडिट करना था अपना, और मुझे एक्सपीरियंस लेना था, मुझे बिग फोर से लेना था। मैंने शुरू से ये सोच के रखा था कि मैं करूँगी तो बिग फोर से ही करूँगी, क्योंकि मुझे एक बहुत वो था कि क्या ऐसा क्या इन्वायरमेंट है बिग फोर में काम करने का कि लोग इतना हाइप अप करते हैं उस चीज़ को। तो मैंने अप्लाई किया PwC के अंदर उनकी विंटर इंडक्शन के लिए, आई थिंक अक्टूबर के अंदर। हाँ, मैं सितंबर में क्वालिफाई हुई, इन अक्टूबर में मैंने उनको अप्लाई किया। उनकी बाय चांस उनकी अश्योरेंस के अंदर की ही आई थी कि उनको ACCAs चाहिए थे, CAs के साथ चली थी इंडक्शन। तो दिसंबर हो गया, मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने साथ साथ KPMG में भी अप्लाई, मैंने सब में ही किया था। आई थिंक EY में भी मैंने किया था, डिलॉयट को छोड़ के, डिलॉयट की उस वक्त आई नहीं थी। तो मैंने सब में ही अप्लाई किया था कि कहीं तो लगी जाएगी, मतलब अगर कुछ भी नहीं होता तो कहीं तो लग जाएगी। तो अब उनका कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि मेरा भाई भी PwC में था, तो मुझे ये था कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ PwC। अब नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी महीने हो गए वेट कर रही थी। देन आई अप्लाइड इन KPMG एज वेल, एंड बाई चांस वहाँ पे मेरा हो गया KPMG के अंदर। बट उसी मीन वाइल मुझे PwC से भी आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। देन आई हैड टू डिसाइड कि किसको चूज़ करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रोज एंड कॉन्स दैट यू मैच। देन माई ब्रदर वॉज देयर, सो इट वॉज अ लिटिल सपोर्ट कि चलो वो है, तो देन आई जॉइन PwC। बट आई थिंक माई पर्सनल चैलेंजेस वर ओनली दैट बिकॉज ACCA के बाद ना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फर्म के अंदर कम होती है, बिकॉज उनको केटर करना होता है उनको भी। तो मेरे लिए यही चैलेंज था कि वो हमें बैक फुट पे रखने वाली वो होती है ना, कि पहले हम CAs को इंडक्ट कर लेते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट बचती है उनसे हम फिर AC से हायर करेंगे। तो आई थिंक ये वाली चीज़ है जो मेरे लिए चैलेंज बनी थी। बट आई थिंक फिर जब हो गया तो फिर हम लाइक, क्योंकि जब मैं इंडक्ट हुई थी तब मेरे साथ सारे जो पैनल पे थे वो सब ACCAs ही थे, क्योंकि वो बाद में हायरिंग कर रहे थे हमारी। तो ये था कि पहले CAs की हायरिंग हो जाती है, फिर ACCAs की हायरिंग होती है, इस तरीके से था। तो ये चैलेंज था, बट फिर हो गया तो फिर मैंने कहा चलो अब हो ही गया तो PwC चले जाते हैं। अच्छा पैकेज भी था, भाई भी था, तो इट वाज ऑल अ गुड। अच्छा, यू वेंट स्ट्रेट लाइक फ्रेश इनटू फर्म, या आपने पहले कोई इंटर्नशिप की थी या कोई मैंने की थी, इसी वजह से मैंने KPMG में भी अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने KPMG से अपने आई थिंक स्किल मॉड्यूल के अंदर या प्रोफेशनल मॉड्यूल के अंदर एक इंटर्नशिप की थी 1 महीने की। उनके एश्योरेंस डिपार्टमेंट था, तो हम लोग ने उसके अंदर की थी एक महीने के लिए। How did you got to know of this opportunity? सो अगेन अ फनी सीन, उनका हम लोग एक ग्रुप्स में ऐड थे, जॉब्स ग्रुप टाइप नहीं होता, तो उसके अंदर जो पार्टनर थे, आई वोंट नेम हिम, उन्होंने अपना ही एक मैसेज डाला था कि अगर किसी को इंटर्नशिप या वो करनी है तो कांटेक्ट करें इस नंबर के ऊपर, एंड इट वाज हिज पर्सनल नंबर। तो हम लोग ने बगैर कुछ सोचे, मतलब मेरे दोस्तों ने और हमने बगैर कुछ सोचे उस पर मैसेज कर दिया, अपनी CV भेज दी। बाई चांस रिप्लाई भी आ गया उनसे, पार्टनर से, उसी थोड़ी देर के अंदर। आई एम लाइक शॉक्ड, आई वाज लाइक, अच्छा पता था रिप्लाई आने के बाद कि ये पार्टनर है? हमें पहले ही पता था कि वो पार्टनर है, क्योंकि वो मैसेज उन्होंने जब डाला था तो उन्होंने नीचे अपना लिखा हुआ था कि वो पार्टनर है, और हम उन्हीं की ग्रुप में भी थे। सो आई एम लाइक कि फेक तो नहीं, स्कैम तो नहीं कि पार्टनर से रिप्लाई आ रहा है इतनी तेज़ी से। बट देन ही आस्क्ड कि आपकी कितनी परसेंटेज थी, एंड देन ही सेड कि कम एंड मीट। तो हम गए, एंड अगेन सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, इट वॉज एन इनफॉर्मल इंटरव्यू हुआ। ही आस्क्ड सम थिंग्स एंड ही सेड ओके जॉइन। I'm like, wow, is it that easy? Yeah, that's it. Is it that easy? तो उसके बाद से हम लोग ने 1 महीना बस इंटर्नशिप थी उनके अंदर, इंटर्नशिप की, एंड वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद से वो जानते थे, तो जैसे मेरी जब AFF में नहीं होती तो मैं उनके पास गई भी थी कि इस तरीके का है। आई अप्लाइड थ्रू HR एज वेल, एंड आई वेंट टू मीट हिम एज वेल कि इस तरीके से है। बट वेरी एनर्जेटिकली ही सेड नो नो नो, यू शुड वर्क हियर, एंड उन्होंने उनको बुलाया कि इसका आप प्रोसेस स्टार्ट करवा दो। तो आई हाउ थिंक इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़? क्या आप पहले कुछ प्रायर लाइक एक तो नेटवर्किंग अपनी करें? Exactly. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? जो मेरा सेटबैक एक था, आई थिंक जो मुझे एज अ यंगर सेल्फ अगर मैं अपने आप को एक देना चाहूँगी ना, वो ये देना चाहूँगी कि आई थिंक मुझे नेटवर्किंग करनी चाहिए थी और मुझे पहले से काम स्टार्ट करना चाहिए था। बट आपने की है नेटवर्क? बट मैंने नेटवर्किंग सॉर्ट ऑफ की, सॉर्ट ऑफ नहीं भी की, मतलब मुझे लगता है कि मुझे और करनी चाहिए थी, मुझे और, बिकॉज मैं थोड़ा सा पीपल शाय हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं उनसे कॉन्वर्जेशन कर सकती। आई डोंट फील लाइक यू आर। ये दिस मोटिवेशन केम व्हेन आई वेंट for my secondment in Dubai, and I think I was alone there. So जब आप अकेले होते ना तब तो बात ही करनी पड़ती है, तो वो I think all this motivation came from there.
personal growth. It was a personal growth for me. So I think back, अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलूँगी ना, मुझे कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए था पहले भी. बहुत ज़्यादा काम भी आता वो, या इंटर्नशिप्स कर लेनी चाहिए थी, या कुछ भी कर लेना चाहिए था. बट आई थिंक उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर था, तो फिर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, कि इतनी जल्दी भी नहीं थी, बिकॉज मैंने काफ़ी जल्दी 21 ईयर्स में ख़त्म कर लिया था अपना ACCA. तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ कि मैं जॉब नहीं कर सकती इस वजह से. लेकिन अभी अगर मैं होती विद दिस इकॉनमी, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं अपनी इंटर्नशिप्स या जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए थी विथ माई ACCA. It's very challenging for people, and I salute those who do their jobs and manage ACCA as well. It's really hard. I have friends who do the same, and it's very hard for them because आप नहीं पढ़ पाते. मैं अभी अपनी जॉब से अगर आती हूँ, I'm dead tired. I can't do anything, and studies not at all. Like मैं अपनी कोई बुक भी नहीं खोल के देख सकती. So I think big हैंड्स टू देम, अपलॉज, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम, जो ये करते हैं साथ में, जो जॉब्स भी करते हैं, जो पढ़ते भी हैं साथ में. इट टेक्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Okay. So before we move towards the end, I want to ask you of one value addition. It can be personal, it can be professional, but one value addition that ACCA has enabled you to be. I think ACCA provided me a lot of motivation that, I can do things. I can achieve certain things because of this global recognition of this degree. ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि it's globally recognized, so you don't feel discriminated anywhere else in the world, whether you are ICAW, whether you are CA, you are treated equally. That if you are ACCA, you're in a good position because जब आप काम करने जा रहे होते हो, you are already qualified. Yeah. So you don't have that कि इसकी qualification नहीं है या skills में कोई मसला है. They know that you are already qualified, and अगर आपने वो qualification की है, so you must have certain skills, certain mindset कि आप काम कर सकते हो. तो I think ACCA ने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी वो दिया. मैं कभी, अगर मैं पहले भी अपने जाऊँ ना, मैं कभी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करूँगी. आई विल स्टिल डू ACCA ओवर एंड ओवर अगेन. ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज काफ़ी मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है ये ACCA in terms of job as well. I think आपका एक mindset खुलता है, and of course the teachers as well. I won't just give the share to ACCA, I will give the share to my institute as well, जिसने मुझे capable किया करने के लिए, जिसने वो skill set I think provide किए कि मैं ACCA को achieve कर पाऊँ. सेल्फ स्टडी करके मुझे नहीं लगता था मुझसे हो पाएगा. मुझे एक वो चाहिए होता है कि क्लास में आना है, क्लासेस लेनी है, अपनी कंप्लीट करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, मॉक्स देने हैं, तो जितना भी वो है मॉक्स देने तो आई थिंक मैं तो प्रमोट करती हूँ कि लोगों को देना चाहिए, बिकॉज वो एग्जैक्टली पेपर पैटर्न जैसे होते हैं. तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि क्या आने वाला है पेपर के अंदर. सो इट्स वेरी हेल्पफुल. All right. Thank you so much, Shizza, for your time. Thank you, Aliza, for your time as well. The time went by so quickly, and this was a lovely conversation, and we are truly grateful to have you. Thank you. Likewise. All right, guys, that is all for today. I will catch you guys in the next episode. This is Aliza Naqvi signing off.